Instruction for the candidate. This is a structured discussion task assessing the patient safety, information gathering, communication with the patient and relatives, and applied clinical knowledge. This is a gynae board. There are four patients. One is patient Mrs. Shazia, underwent diagnostic laparoscopy, and if intraoperative, there was no bilateral fill and spill seen. She is complaining about pain abdomen and pain at the shoulder tip and one episode of vomiting. Mrs. Sabah, gravida 2, para 1 at 10 weeks with vaginal bleeding. On examination, pulse 110 per minute, BP 90 by 60 millimeter of mercury, and fundal height is 20 weeks. Third patient is Mrs. Fozia, gravida 3, para 1, previous 1 cesarean section with vaginal bleeding at 8 weeks of gestation. On examination, pulse is 120 per minute. BP is 80 by 40 millimeter of mercury. Abdomen is tender. On scan, right adnexal ectopic pregnancy. Mrs. Amber, gravida 3, para 2 at 10 weeks of gestation with vaginal bleeding. Abdomen soft, non-tender, os closed. Pulse is 90 per minute. BP 110 by 70 on the scan. Intrauterine pregnancy with no fetal cardiac activity appreciated. Personnels available are senior registrar, fourth year resident, third year resident, first year resident, house officer. We have 10 minutes to prioritize and discuss management of the above gynae board on with the examiner. Okay. बेटा एक मिनट ना मैं जरा मेरा ख्याल है मुझे कनेक्ट दूसरे अपना नेट से करना पड़ेगा, इससे मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही थी। फिर देन एक मिनट, मुझे 2 मिनट में दोबारा आता हूँ। ओके चलो स्टार्ट अगेन कि हमें सिनेरियो पता चल गया तो उसके बाद हम शुरू करें। Okay, sir. Instruction for the candidate. This is a structured discussion task assessing patient safety, information gathering, communication with the patients and relatives, applied clinical knowledge. Gynae board, first patient is Mrs. Shazia, underwent diagnostic laparoscopy and intraoperative. There were no bilateral fill and spill seen. She is complaining about pain abdomen and pain at the shoulder tip and one episode of vomiting. Mrs. Sabah, gravida 2, para 1 at 10 weeks with vaginal bleeding. On examination, pulse is 110 per minute, BP is 90-60 millimeter of mercury. Fundal height is 20 weeks. Mrs. Fozia, gravida 2, para 1, previous 1 cesarean section with vaginal bleeding at 8 weeks of gestation. On examination, pulse is 120 per minute, BP is 80 by 40 millimeter of mercury. Abdomen is tender. On scan, right adnexal ectopic pregnancy. Mrs. Amber, gravida 3, para 2 at 10 weeks of gestation with vaginal bleeding.
abdomen soft, non-tender, os is closed, pulse 90 per minute, BP 110 by 70 on scan, intrauterine pregnancy with no fetal cardiac activity appreciated. Personals available are SR, fourth year resident, third year resident, first year resident, and house officer. You have 10 minutes to prioritize and discuss the management of above gynae board with the examiner. जी, Sir, shall we the start? patients. Ji, sir. Sir, on the list, in this list, there are 4 patients. The 2 patients are vitally unstable, in which the patient with the 10 weeks pregnancy having BP 90 by 60 millimeter of mercury, impulse is 110 per minute, and she is bleeding. And the second patient, which is gravida 2 para 1 with previous one, vaginal bleeding and 8 weeks pregnancy, and she has also vitally unstable and having ectopic pregnancy, most probably the ruptured ectopic pregnancy. So our priority will be on these patients. First of all, I myself as a SR, I will prioritize the patient with ruptured ectopic pregnancy, and I will ask the house officer to access. I will to maintain the IV access of this patient, of those the both the vitally unstable patients. IV access with large bore IV cannulas, 16 to 18 gauge, and cross and scent investigations, and cross match and arrange for the blood. And as she is previous one cesarean section, I will inform my senior as well. There might be additions, and call the OT, and we will explain the. I will explain the diagnosis to the patient and her attendants, and I will take the consent forms signed, and then first priority will be doing the ectopic ruptured pregnancy. The second priority, the 10 weeks pregnancy with the greater fundal height of 20 weeks. So first of all, after stabilizing the patient, we will check either the patient has multiple pregnancies, she is in labor, or she's having molar pregnancy, and or any other uterine pathology which is due to which the fundal height is doubles the gestational weeks. So I will ask my second year resident to evaluate the patient and stabilize the patient. The third patient, which has having laparoscopy, she might have some spill of the dye post-operatively, which is irritating the peritoneum, or she might have some ureteric or visceral injury, but up till now she is having no vitals mentioned here. So I will ask my house officer to take her vitals, or vitals and temperature, and monitor her as she is having one episode of vomiting. So we will observe this patient. If the condition is deteriorating, she might need the surgery, and meanwhile her notes will be reviewed if there was anything intraoperatively, and then she will have if there was any visceral or ureteric injury, the patient will be managed accordingly with the SR. And the fourth patient, which is having, she is gravida 3 para 2 with 10 weeks of pregnancy, and she is having vaginal bleeding, but she has no tenderness, and os is closed. So this is a case of missed miscarriage. Missed miscarriage. We will. This will be fourth on the prioritization, and I will ask my second year, third year resident to have to induce the to prime the cervix with the misoprostol vaginal tablets, and then we will observe this patient every 4 hourly. The tablets will be repeated. Once she is fully dilated, either she will expel the product of conceptus herself, or will require MVA or DNC, dilatation and curettage. Okay. अच्छा,
बेटा मुझे आप इनके डायग्नोसिस तो बता दो सबके पहले एक दफा, एक Sir, बार the रिपीट कर। first patient having laparoscopy, it might be peritoneal irritation with the dye, or she is having any ureteric or visceral injury, but her vitals are not mentioned. So after taking her vitals and other parameters, then we will decide either it is visceral injury or some dye irritation. The second will be most probably the molar pregnancy, bleeding heavily, or ठीक। but as ultrasound scan is not there and beta HCG reports are not there, so we'll review her reports. Either it is a molar pregnancy or a multiple pregnancy with labor or pain. Or ओके third is ruptured ectopic pregnancy. Fourth one is missed miscarriage, sir. ओके। अच्छा, मुझे इसमें जब आप ये बता रहे थे आपके पास ये स्टाफ क्या क्या अवेलेबल था प्लीज? Sir, I was SR, fourth year हम्म। resident, third year resident, first year resident, and house officer. और आपने मुझे दो जगह सेकंड ईयर रेजिडेंट बुलाया, इसको आप घर से बुलाओगे? Sir, the जो DNC would be somehow difficult for first year resident. नहीं बेटा, वो तो इट्स जो आपके पास स्टाफ अवेलेबल है उसी में से यूटिलाइज करते हो ना आप लेबर Yes, बोर्ड sir. में। Sir, आपने first year मुझे resident will be on case first to monitor the नहीं नहीं, patient. अब मेरी बात सुनो आप। जी आपने sir. ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन जो आपने अलॉट किया है, मुझे दो जगह मैंने लिखा है कि आपने कहा है कि जी सेकंड ईयर रेजिडेंट इसको आके देखेगा। सेकंड ईयर रेजिडेंट तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। Sir, first year, sorry, second year है ही नहीं. हाँ, तो फिर जब नहीं है तो फिर देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने जो स्टाफ से आपने जो भी करना है, जी मुझे सर, जी उसमें सर. एतराज नहीं। एक तो नंबर वन, जो आपके पास स्टाफ है आपने उसी में से यूटिलाइज करना है, आप घर से तो नहीं बुला रहे, पे बुलाना ही है तो फिर आप Okay, किसी sir. सीनियर को बुलाओगे। जी सर. सेकेंडली, अगर हम इसमें लेके चले जाते हैं, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास आता है, आपने बिल्कुल स्टार्ट ठीक किया कि जी हमारे पास दो जो हैं, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 जो हैं वो प्रायोरिटी पे। एंड अगर लेट्स सपोज मेरे पास भी आता है तो दीज आर टू केसेस जिसको आप साइड बाय साइड मैनेज आपने करना। एंड उसमें जब आपने दोबारा इसको साइड फाइड करना है तो उसमें आपने उसे करने से पहले इनके वाइटल्स वो आपको एक टॉपिक और इसके बता दिए। ठीक। जी मोलर सर. में आपने उसकी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पूछनी चाहिए क्योंकि वो इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी उसकी ब्लीड कितना कर रही है उस टाइम, और आपने किस तरह उसको इंटरव्यून करके क्या करना। जी अगर सर. वो ब्लीड हैवी कर रही है और ये आपका उसमें से ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आ ही रहे हैं, फिर आप उसके सैंपल्स वगैरह भिजवाने के बाद सब तक उसको वैक्यूएट नहीं करोगे, सेक्शन वैक्यूएशन नहीं करोगे, तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद ठीक ब्लड है. अरेंजमेंट। यस सर. अगर उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, फिर आप इसको एक टॉपिक के साथ उसको यू कैन वेरीफाई कि जी कि हमने पहले ये करना है कि पहले वो करना है। और इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि आपके पास नंबर ऑफ थिएटर्स कितने हैं। अगर आपके पास दो होती हैं तो दोनों एटीज में एक में वन बाय वन ये कर दोगे। अगर आपके पास सिर्फ एक होती है, देन अकॉर्डिंग टू दिस आपने देन यू हैव टू डिसाइड कि जी इसमें से पहले मैंने एक टॉपिक करनी है कि पहले मैंने मोलर की अरेंजमेंट करनी है। जी सर. ठीक। डू यू गेट माई जी. पॉइंट? यस सर. तीसरा, इसमें वही ब्लड ग्रुप और ये वो तो आपने फर्स्ट ईयर और ये वो अ, उसमें सब उसको वी कैन काइंड ऑफ मैनेज दैट डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैसिलिटीज है और ये कैसी है। दूसरा, जो आपकी लेप्रोस्कोपी वाली पेशेंट आ गई उसमें आपने कहा कि जी कि इसको सिर्फ अपना है दिस कुड बी वन ऑफ इसमें जो डिफरेंशियल आता है, ये पोस्ट ऑप पेन भी हो सकती है सिंपल, जो पेन किलर से रिलीव हो जाए। इसमें सिर्फ आपने इसके एब्डोमेन देखनी है, अगर वो सॉफ्ट है और बाउल्स हम प्रेजेंट हैं, देन वी डोंट एक्चुअली डू हैव टू डू, इसकी सिर्फ पेन रिलीफ का हमने करके वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, देन वी डिसाइड की क्या करना। ठीक है सर. लास्ट जो मुझे समझ नहीं आपकी आई, आपने जो मिस कैरेज है उसमें आपने 10 वीक्स में उसको एक्सपल्शन, आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो कि उसकी आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो? Sir, as she is at 10 weeks of pregnancy, so I will medically first line will be the medical treatment, and if she अच्छा, fails the medical.
बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्या हॉस्पिटल बेस्ड होती है कि वो अपना होम बेस्ड होती है? Sir, as उसको it is a मेडिकल 10 weeks pregnancy, she can bleed if I send her with the medical treatment at home. आप 10 वीक्स पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते घर पे? इज दैट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir, we keep her in the hospital. नहीं, अगर आपने हॉस्पिटल रखना है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग हर मेडिकल ट्रीटमेंट? फिर आप उसका सर्जिकल इवैक्यूएशन करो और उसको 2-4 घंटे के बाद घर भिजवाओ। मेडिकल ट्रीटमेंट तो कैन टेक अबाउट समटाइम्स इवन अ वीक। तो एक हफ्ता उसे रखोगे आप? Okay, sir. ये तो इससे मरीज से आपने डिस्कस करना है कि जी व्हाट डज शी रिक्वायर, डज शी रिक्वायर Okay. टू हैव अ मेडिकल ट्रीटमेंट और शी वांट्स लाइक टू हैव अ सर्जिकल, उसके लिए O- डिस्कशन के Okay, लिए। sir. ये तो इसकी काइंड ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज काइंड ऑफ है कि जी अनफॉर्चुनेटली ये प्रेगनेंसी इज नॉट कंटिन्यूइंग, और आगे हमारे पास यही है ऑप्शंस। Okay, sir. वो अब किस लेवल पे किसने करना है, फोर्थ ईयर में करना है, थर्ड ईयर में करना है, फर्स्ट ईयर में करना है, अगर वो कहती है कि जी मैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, वो तो यू Okay. एडवाइज हर मेडिकेशन, उसकी ट्रीटमेंट प्लान एंड यू सेंड हर होम। Okay, sir. हम मुझे तो याद नहीं है आज तक कि हमने अपने वार्ड में, जहाँ पे पहले बेड्स नहीं अवेलेबल होते, वहाँ पे ये मेडिकल ट्रीटमेंट के हमने पेशेंट लिटा दिए हो कि जी आप बेड पे लेटे रहो और ये दवाई खाते रहो, बस और कुछ नहीं कर रहे हो। यस वी टेल देम कि जी खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होती है, तो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द लेबर रूम इमरजेंसी में, या हॉस्पिटल आप दोबारा आ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन। अगर जो पेशेंट कहती है कि जी मैं तो आ ही नहीं सकती, मैं तो आई बहुत दूर से हूँ, then they are not the candidate to have a medical treatment, they are slightly, मतलब उनको फिर हम उसको सेक्शन इवैक्यूएशन या डीएनसी वॉट एवर यू वांट टू डू, या एमवीए, वो एडवाइस करते हो और देन यू सेंड देम होम। Okay, sir. इजंट दैट सो? Yes, sir. Yeah. तो जुइनी के वो सारा हो तो फिर इसके हिसाब से भगवान, जब दो हाई रिस्क केसेस आ जाते हैं, जैसे आपके पास एक मोलर का आ गया और ये आ गया, यही मोलर अगर लेट्स सपोज ब्लीड ना कर रही होती, ये Yes, ब्लीड sir. ना कर रही होती और ये प्रेशर उसके इतने हैं, तो इसके हम प्रेशर मॉनिटर्स कर रहे होते उस टाइम, Yes, sir. या If she was, और yes, फिर sir. एक टॉपिक फर्स्ट पे चली जाती हमारी। अगर ये हैवी Yes. ब्लीड कर रही है, अगर ये हैवी ब्लीड कर रही है और इसकी वैक्यूएशन कम है, हमें 2 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, तो देन आई डू द वैक्यूएशन फर्स्ट, देन आई शिफ्ट द टॉपिक, तब तक उसको हम आईवी लाइन और वो ब्लड और वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके देखेंगे। इन दोनों में Okay. आपने, अगर आपके पास सिर्फ एक है तो इट विल डिपेंड अपॉन उसकी बोलर की अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पे, उसकी पल्स पे, उसकी वॉल्यूम पे, और उसकी जनरल कंडीशन पे। Yes, sir. ठीक है? अगर वो Yes, आपका sir. ख्याल है कि पहले है तो फर्स्ट वाले विल डू द इवैक्यूएशन, देन विल शिफ्ट द ये दूसरी टॉपिक वाली। लेप्रोस्कोपी वाली में हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो उसको पेन हो रही है, उसकी कोई इंटेस्टाइनल या अंदर कोई हेमरेज तो नहीं हो रहा, जो पोर्ट के बाद डालते हुए हो जाती है ब्लीडिंग। वो डिपेंड करता है उसके वाइटल पे, उसके एब्डोमेन पे, और अपना उसकी गट साउंड्स पे, Yes, sir. कि जो वहाँ पे उसके पेरिटोनाइटिस को आपने रूल आउट करना है उसमें। अगर वो नहीं है सिंपल, तो सिंपल उसको पेन किलर्स देने हैं, उसका वाइटल मॉनिटर करना है, एंड वील कीप हर फॉर अ वाइल जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होती, और उसको हम आगे उसको देखते हैं। अगर उससे वॉमिटिंग हो रही है, हम उसको एनपीयू कर देंगे फॉर द टाइम भी। और उसी तरह फिर मिस्ट मिस्ट वाली में हम आ जाते हैं। तो मिस्ट वाली में वील टॉक टू द पेशेंट कि जी वो आपका इवन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर में रेजिडेंट जाके बता सकता है कि जी इससे अनफॉर्चुनेटली हो गया है। अब आगे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसकी वैक्यूएशन करें, और उसके बाद वैक्यूएशन के बाद या आपको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे दें, और वैक्यूएशन भी हमने अभी करनी है उसके एनपीओ पे, और उस पे उसकी कंडीशन जल्दी डिपेंड करता है और आपकी फैसिलिटी पर डिपेंड करता है, वरना कल मॉर्निंग पे लिस्ट पे हम उसको नेक्स्ट अवेलेबल लिस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। Okay, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है इन चारों में? No, और sir. जाहिर है जो आपके पास उन्होंने स्टाफ दिया हुआ है उसी में से आप करोगे। आपने इस सारे स्टाफ में से जो यूज़ किया, वो एक बेचारे हाउस ऑफिसर को भगाते रहे कि आईवी लाइन लेते रहो, कभी इसकी कभी उसकी, और एक सेकंड ईयर रेजिडेंट जो है नहीं हमारे पास अवेलेबल, ना आपने फोर्थ ईयर का कहा, आपने थर्ड ईयर का किया, ना फर्स्ट ईयर का किया, और खुद आप आई डोंट नो क्या कर रहे थे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे हमने इसको क्या क्या करना है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ। If anybody have any queries?
वो देखें ना। सर वी गॉट इट, वेरी गुड सर, बहुत समझ आई। तो इसलिए नंबर वन, ये यू नीड टू बी, थोड़ा सा इसको जरा टाइम देके देखना पड़ता है कि आपने इसमें क्या चीज करनी है। नॉर्मली ये जो सिनारियो था, इसमें ये वाले मरीज इस तरह वार्ड में लेटे नहीं होते। दीज आर नॉट जनरली विच वी ली। हाँ, ये अपना, क्योंकि देखो ये वाला जितने सारे ये हाई रिस्क वाले मरीज हैं, जो एक टॉपिक आएगी जो आपकी ये मोलर आएगी, ये सारे के सारे इमरजेंसी में जाते हैं, और हमें पता है कि हमारी इमरजेंसी जो है वो लेबर रूम में ही सारी डील होती है, नॉट इन द वार्ड। दीज आर नॉट द पेशेंट। हाँ, लेप्रोस्कोपी वाला दैट माइट बी के पोस्ट ऑप गायनी के वार्ड में जा सकता है, पर बाकी सारे जो है, थोड़ा सा सिनारियो भी हमारा ठीक होने वाला है। उसमें फिर इसकी डायग्नोसिस और ये सारा कुछ फिर इमरजेंसी में, हमारी जो इमरजेंसी है वो नॉर्मली फिर लेबर वार्ड में हो जाती है। गायनी वार्ड में नॉर्मली आमतौर पे या प्री ऑपरेशन लेटा होता है या पोस्ट ऑपरेशन लेटा होता है, और उसमें उसकी इस तरह के जो सिनारीज आते हैं, उसमें जनरली कि माइमेक्टमी हो गई है, तो उसको जाके आपने बाद में पेशेंट को बताना है कि हाँ जी क्या सर्जरी में क्या हुआ और हमारा आगे का प्लान क्या है, या स्टेक्टमी हो गई है, या ड्यूरिंग सर्जरी कोई उसकी इंजरी हो गई है, लेट्स सपोज यूरेटर की है, वो तो हमने क्या मैनेजमेंट की है, या कोई इंटेस्टाइन की इंजरी हो गई है। इस किस्म के जनरली गायनी वार्ड में फिर ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। ये वाला जो है इस तरह, जो मिस मिस वाला आएगा ये तो नॉर्मली उधर आता है आपके ओपीडी के अंदर। ओपीडी में यू डिसाइड कीजिए हमने इसको क्या करना है, either we would like to admit and do a section or we do the medical। एक टॉपिक हमेशा लेबर रूम में ही आती है, मोलर भी इसी तरह का जो ब्लीडिंग के साथ आएगा वो फिर भी लेबर रूम में ही आएगा। मतलब लेबर रूम डज नॉट मीन कि सिर्फ ऑब्स्टेटिक्स ऑप्स वाला, और ये वो इमरजेंसी वाले केसेस में आप। चलो, इफ somebody has any queries मुझे बता दो, अगर नहीं है तो then we can move on। सर सिर्फ ये पूछना था कि ऐसे केसेस को हर, चाहे वो इमरजेंसी हो या जो भी हो, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसी सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना है। बेटा इसी सीक्वेंस में हमने एक्सप्लेन जरूर करना है, पर आपने जितनी, आपको उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपने ज़रूर पूछनी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आगे मैनेज करोगे। लेकिन डू रिमेंबर दैट के फॉर ईच केस मैक्सिमम आपके पास 2-2 मिनट है, आप उसकी डिटेल में नहीं जाओगे। फिर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपने मोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे ये मोलर की मैं अगर आ जाता हूँ, इफ़ आई हैव टू टेक इन इन्फॉर्मेशन, तो मैं इससे पहले पूछ लूंगा कि इसका प्रीवियस कोई अल्ट्रासाउंड पे कोई डायग्नोसिस है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं थी क्योंकि वो 20 वीक साइज है, और दूसरी जो ब्लीडिंग कितनी हो रही है, और उसमें कोई वेसिकल्स तो नहीं पास हुए। तीन चार दो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने डिसाइड किया अच्छा ये मोलर है, तो इसका हमने बीटा एससीजी भिजवाना है, इसका ब्लड अरेंज करना है, इसकी सक्शन में इक्वेशन करनी है, ताकि ये बाद में प्री और पोस्ट हम उसका आके कर सकें। तो सर इसमें फिर सक्शन एवेक्यूएशन की जो है मेथड वो पूरी नहीं बतानी उनको? ना, नो, तो फिर आपने सिर्फ, आई डोंट थिंक सो, अगर इसका पूरा मेथड उस पर आ जाएगा, वो पूरा एक टोक स्टेशन एक कहलाता है। यू डोंट और हैव टू गो अगर सर और अगर सर ऐसे ही अगर हम एक टॉपिक में रप्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम उसको स्टेबलाइज करेंगे, कि उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम लेप्रोस्कोपिकली जाएंगे कि लेप्रोट में जाएंगे? वो आपकी बेटा जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज और जो आपके पास पर्सनल्स हैं, उनकी उस पर डिपेंड करता है, एबिलिटीज पे और स्किल, सर्जिकल स्किल्स पे। जी जी सर। और तीसरा, इन सब के अंदर हमने जो एक चीज मिस कर दी प्रॉब्ली, वो हमने बीच में उन्होंने जिक्र किया था कि जी हम थिएटर और एनेस्थीसिया वालों को इन्फॉर्म कर देंगे कि जी इस तरह ये हमारा हाई रिस्क केस आ रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो, अब उसे एक टॉपिक आपने ओपन करनी है या हमने उसको लेप्रोस्कोपिकली करना है, वो दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं, और तीसरा उसमें ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि उसमें आपका प्लान क्या है कि जी आपने सेल्फ इंजेक्टिंग करनी है कि सेल्फ अपना ऑटमी करनी, वो सारा कुछ इंट्राऑपरेटिव डिसाइड करेगा। लेकिन ये बेसिकली इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी में ये पूछ सकते हैं कि जी आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस क्या है, और प्रेफरेंस के अंदर आप आओगे क्योंकि वो प्रीवियस वन है, और डिपेंडिंग अपॉन अगर ज़्यादा भी जो आप इसमें देना है तो इट विल डिपेंड अपॉन कि जी आपकी कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब का क्या कंडीशन है। अगर तो वो बिल्कुल ठीक है और ये रप्चर्ड है
और ये सैल्वेज नहीं हो सकती तो विल डू अ सेल्फ-इंजेक्टमी व्हिच इज आइडियल। और ये आप मरीज से पहले भी जरा डिस्कस करके बिफोर वी टेक हर टू द थिएटर होगा, लेकिन इसमें आपने बेसिकली उसको थिएटर में लेके जाके इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी है। सर एक टॉपिक में अगर हम रप्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं क्लिनिकली और जी, हमारे पास मोलार भी है जो है माइल्डली ब्लीड कर रही है, तो हम एक टॉपिक पर प्रेफरेंस देंगे ना? और केस प्रायोरिटी के फॉर हिसाब से सर्जरी, फॉर सर्जरी फॉर सर्जरी। या देखो, सीक्वेंस में भी पहले एक टॉपिक रखेंगे ना? अगर आप कह रहे हो कि एक थिएटर है, जी जी सर। अगर तो हमारे दो थिएटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये दोनों साइड बाय साइड शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। जी जी सर। आप ये कहोगे क्योंकि दोनों ही हाई रिस्क है। अगर सही। आपका एग्जामिनर कहता है, और उसमें फिर ये होगा कि आप बता दो कि जी कि एस जो फोर्थ ईयर वाला है लेट्स सपोज, आप उससे कहते हो कि जी वो मोलर स्टार्ट कर देगा, या आप उधर से सॉरी आई वुड से कि सीनियर स्टार जो है ये मोलर पे सेक्शन पे चला जाएगा और जो फोर्थ ईयर रेजिडेंट है वो एक टॉपिक को ओपन करेगा जब तक। तो बाय द टाइम शी और ही ओपन्स द abdomen तो सी अंदर क्या है तब तक वो मोलर वाली खत्म करके ऐसा कैन जॉइन दैम। थैंक यू ये सर। साइड ये बाय आइडिया साइड। नहीं था कि जी जी सर। सर ये आइडिया नहीं था कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास थिएटर अगर दो अवेलेबल हैं तो मैं ये जो है साइड बाय साइड अगर स्टार्ट कर सकती हाँ, अगर देखो करते तो हम नॉर्मली यही हैं, अगर दो थिएटर अवेलेबल हैं हम दोनों पे जाके इस तरह की हाई पे डाल देंगे। अगर हूँ? जी एक सर। है तो दूसरे में आप कह सकते हो कि जी फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर मोलर ज्यादा ब्लीड कर रही है तो आपको आगे एक टॉपिक को हम फ्लूइड्स अपना हम एक्सेल वो करके उसके प्रेशर को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, उतनी देर में ये करके फिर सेकंड हम टॉपिक करेंगे। अगर मोलर की ब्लीडिंग कम है फिर टॉपिक उस पर आ जाएगी। ये आपको यही इसमें वैल्यूएशन करनी है आपने, उसने सिर्फ वाइटल्स आपको दिए 90/60 और 80/40। अगर मोलर बहुत हैवीली ब्लीड कर रही है तो फिर तो आप उसको वेट नहीं कर सकते। एक टॉपिक नॉर्मली इतना टाइम आपको मिल जाता है कि उसको आप फ्लूइड वगैरह लगाते हो, फिर बाद द टाइम आप वो करके फिर आगे चले जाते हो। लेकिन इट कांट बी एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ये आपने ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग करना है कि इसमें से क्या करना है। डू यू गेट माई पॉइंट कि नहीं? जी जी सर। थैंक यू सर। और सर कोई मैसेज में किसी ने लिखा है कि सीक्वेंस एक बार फिर से रिपीट कर दे। सीक्वेंस तो किसी आपने बताना है ना बेटा इसमें। सर मैंने भी ठीक से नहीं सुना था, अभी किसी और ने भी क्वेश्चन रेज किया है। सर मोलार आपने पहले कहा, फिर एक टॉपिक और उसके अलावा मिस कैरेज, ऐसे ही ना? देखो, नहीं देखो, मैं जी। दोबारा रिपीट कर दूं। जी सर। दे आर टू इमरजेंसी जिसमें मोलर है और दूसरा टॉपिक है। इट विल डिपेंड अपॉन दोनों में से कौन सा हेवीली ब्लीड कर रहा है, किसके वाइटल्स कैसे हैं, और उसको अगर मैं फ्लूइड लगाता हूँ एक टॉपिक को और वो थोड़ा सा उसकी रिसस्टेशन बेहतर हो जाती है तो फिर मैं, और मोलर हेवीली ब्लीड कर रहा है तो मोलर विल बी वन, टॉपिक विल बी टू। अगर मोलर हेवीली ब्लीड नहीं कर रहा और वो स्टेबल है तो देन आई डू गो फॉर एक टॉपिक फर्स्ट, क्योंकि बाय द टाइम इसकी ब्लड और सारा कुछ हो जाएगा, देन आई डू द मोलर वन सेकेंड। जो मुझे इस क्लिनिकल सिनारियो के अंदर उन्होंने दिया हुआ सीक्वेंस, जो देख लो, मैंने पढ़ा नहीं था। सर इसका मतलब ये इनकम्प्लीट जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कंप्लीट करेंगे जब हम एग्जामिनर से पूछेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने सीक्वेंस कैसे रखनी है। यस, ऑफ कोर्स, और उससे पहले उसका डिफरेंशियल भी आपने अपने जेहन में सोचना है। जी सर। ठीक है सर। और डिफरेंशियल भी आपने इस बेस सोचना है। लेट्स सपोज ये सिर्फ मोलर नहीं होती, ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं जो एक्सपेल कर रही हैं, ठीक। फिर आपका सिनारियो में टोटली चेंज हो जाता कि नहीं। सही। आप उसे कहते हैं मैं इसकी पेल्विक करता, उसकी डायलेशन पेल्विक करती, डायलिटेशन देखती, और अगर वो 7-8 सेंटीमीटर है, बेबी को एक्सपेल कर रही है, 20 वीक्स पे है, तो उसको मैं ये इवन थर्ड ईयर रेजिडेंट कहती कि जी इसको आप डिलीवर कराओ, इसको शिफ्ट करो, इसको डिलीवर कराओ। अगर उसकी सर हम बेबी, जो सर हम जो जब R4 लेवल पे प्रायोरिटाइजेशन करते थे उसको हम जो है ना बुक वाले इस सिनेरियोज में कभी अप्लाई नहीं कर पाते कि हमने ये R4 को देना है, R3 को देना है। कहीं एग्जामिनर को ये बात ना पसंद आए कि ये पेशेंट जो है सीरियस, इसने इसको दे दिया, एचओ को क्यों असाइन कर दिया है कि वो उसकी अरेंज करवा रही है जब तक प्रिपेयर कर रही है।
हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ पे कैसे करना है। दैट इज वेरी सिंपल। देखो, अब फर्स्ट ईयर वाला रेजिडेंट जो है वो अकेला टॉपिक तो नहीं कर सकता, जहां तक मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल सर। थर्ड ईयर वाला भी नहीं कर सकता। जी सर। फोर्थ R4 ईयर में वाला, हाँ सुपरविजन में R4, पहले करते थे और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट। हाँ आप वहां पे सीनियर रजिस्ट्रार अगर हैं तो यू कैन ऑलवेज सुपरवाइज देन ईच वन के जी। आप कहते नहीं है कई बार कि आप ये लेप्रोटमी को ओपन करो, मैं तब तक वो काम करके वापस आ जाती हूँ। जी जी सर, ऐसे ही कहते हैं। तो फिर वही आप कहोगे जी लेस पोज इसमें होता है और एक टॉपिक पहले करनी है, आप कहोगे इसको R4 को कि जी आप इसको ओपन करो, तब तक मैं ये मोलर वगैरह की सेक्शन करके आके उसे देख लेती हूँ और उसे बता दोगे जी ओपन करने के बाद। देन बिफोर शी डिसाइड्स कि हमने ब्लीडिंग में क्लैंप लगाना है कि हमने क्या करना है, वो आके आप उसे गाइड कर देते, सुपरवाइज कर देते। थर्ड ठीक ईयर है वाला थर्ड ईयर वाला रेजिडेंट जो है वो आराम से मिस कैरेज वाले को एक्सप्लेन कर सकता है कि जी अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, अब ये हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर वाला रेजिडेंट जो है वो आराम से जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन वाली है उसको मैनेज कर सकता है, जाके देख सकता है, ये कर सकता है। हाउस ऑफिसर बेचारा जो है वो ब्लड की अरेंजमेंट के लिए भाग सकता है, आईवी लाइन ले सकता है। दैट वी नो, ये प्रिपरेशन कर सकता है, एनेस्थीसिया वालों को इन्फॉर्म कर सकता है, थिएटर वालों को इन्फॉर्म कर सकता है कि इस तरह हमारे 2 हाई रिस्क केसेस आ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत क्लियर हुआ अभी। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट बेस्ड रूल नहीं है ये कि जी किसने क्या करना है, वो ऑल डिपेंड अपॉन के अगले की कैपेबिलिटीज और आपके हिसाब से उसको आपका क्या ख्याल है क्या। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जिस लेवल मैंने आपको बताया, इस लेवल पे फोर्थ ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर को पता होना चाहिए ये क्या हो रहा है। और जनरली गायनी वार्ड में ये भी आ सकता है कि जी एक लिस्ट पे स्टेक्टमी है, एक मायोमेक्टमी है, एक लेट्स सपोज क्रॉनिक एक टॉपिक है वो है, तो वो कौन कौन परफॉर्म करेगा। वो फिर स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम प्रोफेसर एपी एसोसिएट से भी लेके नीचे सीनियर स्टाफ फोर्थ ईयर थर्ड ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर। वो जो जी जी लिस्ट मार्क करते थे हम कि कल ये वाली सर्जरी प्रीवियस 3 सेक्शंस हैं या प्रीवियर है या इंक्रीटा है, ये किसने करना है तो वो किसने करना है, उस तरह भी आपको आ सकता है बोर्ड में कि जी की कल की लिस्ट पे क्या क्या चीजें आपने प्रिपरेशन की, क्या क्या कर चीजें तैयार करनी है। सही। ठीक, चलो चलो, आज एनीथिंग का एल्स? खत्म है सर। चलो बेटा, फिर if it is all done then I'll beg leave and then inshallah see you next week. Okay, Thank you, sir. okay बेटा, इंशाल्लाह, थैंक यू सर। okay.